ہمارا جیون گزارے ہم میں سب کے ساتھی ہو۔ میں سب سے پہلے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں خدا کے لوگوں میں خدا کی انجیل کی بڑائی کر سکوں، اور اس کے بعد خدا کے خادموں کا، چرچ کی ساری کمیٹی کا، جو ہم جیسے ناشروں کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی آگے خدا کے کام کی منادی کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے کلام مقدس کو سیکھ لیا آج ہم قرآن مقدس میں سے جو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں آج ہم چھوٹی دعاؤں کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان میں بہت پاور ہوتی ہے۔ آج مقبول کی دعا پہ ہم نے غور کی ہے۔ تیسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کلام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ اور لکھا ہے کہ خدا پیمان سے آیا اور قدوس کوہ فرام سے اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ ہم بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ بولو تو صحیح، ہاللیلویا۔ جانتے ہیں کلیسیا کا چپ رہنا شیطان کا سنجال چلن ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی حضوری میں کوئی چپ نہیں رہ سکتا، ایک ہی چپ رہتا ہے اور وہ ابلیس ہے۔ ایلیا نبی نے کتنی دعا کی؟ ایلیا نبی نے تقریباً 65 سے 70 الفاظ کی دعا کی ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا کی ہے اور خدا آسمان کا خدا آسمان سے سنتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا آگ سے جواب دیتا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے اور خدا آسمان سے جواب دے رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ پطرس اور یوحنا چھوٹی سی ایک جملے کی دعا کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ لنگڑا چلنے لگ جاتا ہے۔ پطرس ایک جملہ کہتا ہے، صرف ایک لائن بیان کرتا ہے کہ اٹھ اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، اور لکھا ہے کہ لنگڑا چلنے لگ جاتا ہے۔ حزقیل دیوار کی طرف منہ کرتا ہے اور 31 الفاظ کی دعا کرتا ہے صرف، اور لکھا ہے کہ خدا آسمان کا خدا آسمان سے جواب دے رہا ہے کہ یہ سایہ جا کے میرے بندہ کو بتا کہ میں نے اس کی عمر کو 15 برس بڑھا دیا ہے۔ خدا ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جانتے ہیں یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے، ایک دفعہ جب یسوع مسیح دعا کر کے آئے تو شاگرد کہتے ہیں کہ یسوع اے ربی، اے استاد ہمیں دعا کرنی سکھا۔ تو جانتے ہیں لوکا کی انجیل میں آپ پڑھ کے دیکھیے، یسوع مسیح نے ان پہ چھوٹی سی دعا سکھائی ہے۔ تقریباً 53 سے 55 الفاظ کی دعا یسوع مسیح سکھا رہے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے اس سے بہتر اور اس سے پاورفل دعا آج تک نہ کسی نے سکھائی ہے اور نہ ہی کسی نے کی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آج حبقوق خدا کے حضور میں ایک چھوٹی سی دعا کر رہا ہے۔ پہلی آیت کو پڑھ کے دیکھیے، ایک تبدیلی کی دعا کر رہا ہے، ایک ریوائول کی دعا کر رہا ہے کہ خدا تیرے ریوائول کو چاہتا ہوں، تبدیلی ہے۔ تو لکھا ہے کہ خدا پہاڑ سے اتر آیا ہے۔ خدا دعا کو سنتا ہے اور خدا پہاڑ سے اترا ہے جواب دینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جانتے ہیں جب میں 8ویں کلاس میں تھا، اس سے پہلے کہ میں 9ویں کلاس میں ہوتا، تو ہمارے ایک سر تھے، سر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جی اگر آپ کے میٹرک میں 800 نمبر نہیں آیا تو آپ کسی کھاتے میں نہیں، آپ کسی کھاتے میں نہیں شمار کیے جاؤ گے۔ تو جانتے ہیں میں خدا سے یہی دعا کیا کرتا، میں خدا سے کہتا تھا خدا بس 800 نمبر دے دے، 801 نمبر دے دے، بس میں خوش، بس 800 نمبر دے دے۔ اور جانتے ہیں جب رزلٹ آیا تو میرے 946 نمبر تھے۔ 946 نمبر بھائی جان سے مجھے بھی پتا رزلٹ آیا، لیکن جب رزلٹ آیا بھائی جان سے مجھے کال کر کے بتا رہے ہیں
नफीस भाई आपका 946 नंबर है। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे खुदा की कुदरत पे यकीन था कि खुदा दुआओं को सुनता है। जिस खुदा के आगे मैंने 2-2.5 साल दुआ की है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि खुदा मुझे 800 नंबर दे दे। खुदा मेरी सोच से बढ़ के कर रहा है। खुदा जो है वो दुआओं को सुनता है। हालेलुया। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में किसी ने सुना है? जानते हैं इस शख्स ने जब चांद के ऊपर पहला कदम रखा तो इसकी जुबान से कुछ अल्फाज निकले। इसने कहा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड एंड वन जॉइंट फॉर मैनकाइंड। और इससे पूछा गया कि क्या आपने सिर्फ यही कहा? उसने कहा नहीं, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि मैंने एक और फिक्रा, एक और जुमला अदा किया था। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा, मैंने कहा था गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोर्स्की। उन्होंने कहा, सर ये मिस्टर गोर्स्की कौन है? जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, जब मैं छोटा था तो हम बेसबॉल खेला करते थे। जानते हैं जब बेसबॉल खेला करते थे तो उनकी बॉल रोजाना, उनके पड़ोस में एक घर था मिस्टर गोर्स्की का, रोजाना उनकी बॉल उनके घर में जाया करती थी। कहते हैं कि मिस्टर गोर्स्की बहुत अच्छे थे, जब भी बॉल जाती थी मिस्टर गोर्स्की बॉल उठा के देते थे, लेकिन उनकी वाइफ उनकी तरह नहीं थी। बोलते जब भी मिस्टर गोर्स्की बॉल उठा के दिया करते थे तो उनकी वाइफ उनको डांटती थी, उनसे लड़ाई करती थी कि क्यों करते हो। जाके एक दिन बॉल उनके घर में गई, पता चला कि बॉल उनके बेडरूम के पास गिरी है, मिस्टर गोर्स्की के बेडरूम के साथ गिरी है। जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने दीवार फैलानी और उनके घर में गए हैं। जब बॉल उठा रहे हैं तो जब वो बेडरूम के पास से गुजर रहे हैं तो वो आवाज सुनते हैं। मिस्टर गोर्स्की अपनी वाइफ से कहते हैं कि दीदी वाइफ मुझे एक हाथ दो ना, मुझसे गले मिल लो ना। जानते हैं वाइफ क्या जवाब देती है? वाइफ कहती है कि जिस दिन तेरे को नालायक बच्चे चांद पर चले जाएंगे ना, उस दिन आना और मुझसे हग कर लेना। और मिस्टर नील आर्मस्ट्रांग उस दिन से मेहनत शुरू करते हैं। जानते हैं उसको पसंद करता था, उस दिन से उसके लिए मेहनत शुरू करता है और एक दिन वो चांद पर पहुंच जाता है। हालेलुया। अगर नील आर्मस्ट्रांग ने मिस्टर गोर्स्की की पोशीदगी में होने वाली चंद बातों को सुन के वो चांद पर जा सकता है, तो आपका और मेरा खुदा हमारी पोशीदगी में होने वाली छोटी छोटी दुआओं को सुनकर क्यों ना जवाब देगा। जानते हैं जब हमने पहली छोटी दुआ की थी, जब हमने पहली दफा दुआ की थी, खुदा ने तभी काम करना शुरू कर दिया था। खुदा तभी कुछ कर रहा था, खुदा तभी मूव करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हमें आज समझदार बनना है, इसलिए जो कुछ बोलते हैं वो सोच समझ के बोले, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। हेनरी फोर्ड जो थे, एक दफा एक शख्स गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी पे जब जा रहा है तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब एक आधा घंटा वो गाड़ी के इंजन को ठीक कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो कुछ देर बाद क्या हुआ है, एक शख्स आया है और उसके पास खड़ा हुए। जानते बड़ी लंबी कार लैम्बोर्गिनी पे आया है, गाड़ी साथ खड़ी हो गई है। उसके अंदर से एक थ्री पीस पहना हुआ शख्स जो कि बहुत अमीर है, उसके अंदर से निकला है, पास आके कहने लग गया है कि भाई क्या हुआ है? बोलता सर गाड़ी खराब हो गई है, शायद इंजन में खराबी हो गई है, इतने वक्त से मैं सही कर रहा हूँ नहीं। जब सब कुछ सुनता है कहता है कि सर कैन आई हेल्प यू, आपकी मदद करूँ? वो कहता है अरे सर आप कैसे मदद कर सकते हैं, आप इतने बड़े घर के लोग, इतनी बड़ी कार है आपके पास है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती ही क्या है, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? वो कहता है सर एक बार मौका तो दें मुझे। और जब वो मौका ले लेता है वो कहता है ठीक है सर आप करें। तो विद इन फ्यू मिनट, कुछ ही वक्त में वो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। अब मिस्टर हेनरी फोर्ड ने उसकी गाड़ी को ठीक किया। वो कहता है कि सर ये आपने कैसे किया है, ये आपने कैसे किया, मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हुआ, आपने कैसे किया, आपका नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम हेनरी फोर्ड है, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। जानते हो इस कंपनी को डिजाइन करने वाला मैं हूँ, इस कार को बनाने वाला ही मैं हूँ। जानते हैं हेनरी फोर्ड, अगर आप अपने हाथ से बनाई हुई, अपने हाथ से डिजाइन
नहीं उतर सकता है, आपका खुदा आसमान से क्यों नहीं उतर सकता? तो जानते हैं यही हुआ है 2000 साल पहले। यीशु मसीह आसमान से उतरे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम बेकार पड़े हुए थे, हम एक साइड में पड़े हुए थे, किसी काम में नहीं थे, खुदा हमें कानून बनाने के लिए आया। हालेलुया। जानते हैं पूरी दुनिया में आज मसीही ही हैं, सिर्फ मसीही ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि घराने टूटते नहीं हैं, घराने बिखरते नहीं हैं, घराने बनते हैं। हालेलुया। मुसीबत आती है गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठा खड़ा करने के लिए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद रखने वाले सिर्फ मसीही ही नजर आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु 2000 साल पहले उतरा, दोबारा नहीं उतरेगा। हम मसीही ईमान रखते हैं कि जब हम खुदा के हजूर में आ जाते हैं तो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले उतरे हैं, पहले यीशु किधर था? अरे सदरक मीशक अब्दनगो के साथ आग की भट्टी में नजर आने वाला कौन था? बनी इस्राएल को मुल्क गुलामी के घर से निकाल के रास्ता दिखाने वाला कौन था? जब जमीन बनी, आसमान बना, सूरज चौथे दिन बन रहा है, पहले दिन रोशनी करने वाला कौन था? वही यीशु था। हालेलुया। खुदा दुआओं को सुनता है और उतरता है, जवाब देता है। इसहाक कहता है कि बाप लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा किधर है? जानते हैं इसहाक के मुंह से चंद अल्फाज निकले हैं, छुरी भी है, लकड़ियां भी मौजूद है, बर्रा किधर है? जानते हैं खुदा ने ये छोटी सी दुआ को, एक छोटी सी प्रार्थना को सुना है, और खुदा आसमान का खुदा सुनता है और जवाब देता है। खुदा कहता है इब्राहिम उठा नजर को देख, बर्रा मौजूद है कुर्बानी के लिए। हालेलुया। खुदा छोटी छोटी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। डाकू ने कितने अल्फाज की दुआ की, चंद लफ्ज़ पढ़े, क्या यीशु जब तुम अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने सुना है, यीशु ने सुना है, बोलो तो सही। यीशु ने क्या किया? यीशु ने डाकू के मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज को सुना और कहा कि मैं तुझे सच कहता हूँ, तू मेरे साथ परदोष में होगा। खुदा हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाजों की कदर करता है। हालेलुया। डाकू कहता है कि मुझे याद करना। अगर आज हम भी हर सुबह यही दुआ करना शुरू कर दें, हर वक्त यही दुआ करें, हर सुबह उठ के सबसे पहले ये दुआ करें, ऐ बाबू, ऐ यीशु मुझे याद करना, तो मैं कहता हूँ दी मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑफ प्रेयर यही है कि खुदा मुझे याद करना। जानते हैं आपका सारा दिन ब्लेसिंग में गुजरने वाला है, पावर में गुजरने वाला है, जलाल में गुजरने वाला है। हालेलुया। आपकी एक छोटी सी दुआ क्या कर सकती है? मैं आपसे कहता हूँ योर स्मॉलर प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। हर चीज बच सकती है, हर चीज को आपके लिए मुमकिन कर सकती है आपकी एक छोटी सी दुआ। और जानते हैं कि असल प्रेयर क्या है, असल दुआ क्या है? असल दुआ ये नहीं है कि अपनी बात को खुदा के हजूर में पहुंचा देना, बल्कि असल बात ये है, असल दुआ ये है कि खुदा की मर्जी को जानकर उसके मुताबिक चलना। ये है हकीकी दुआ, ये है असल प्रेयर। हालेलुया। हम गैर अक़वाम की तरह मसीह ने हमें बहुत कुछ मांगना नहीं सिखाया कि जब तुम खुदा के हजूर में आओ तो कहो खुदा ये भी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे, खुदा ये भी कर, वो भी कर। हम गैर अक़वाम की तरह हम बहुत कुछ नहीं मांग सकते, ना हम मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं कि खुदा हमें देता है। हालेलुया। हम छोटी दुआओं करते हैं, खुदा हमारी छोटी दुआओं को भी सुनता है। हालेलुया। और सबसे बेहतर मैं कहता हूँ यही दुआ है कि खुदावन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा मेरी जिंदगी में हो। हालेलुया। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ऐ बाप, जैसा मैं नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा कर। हालेलुया।
खुदा छोटी छोटी दुआओं को सुनता है और जानते हैं कि जवाब भी देता है। और खुदा जब जवाब देता है तो आपको मुकम्मल काम करके दिखाता है। हालेलुया। भाई इस वक्त कलाम सुना रहे थे कि खुदा जो है वो हमारी तरफ से बोलता है, खुदा हमारी तरफ से खड़ा होता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और खुदा जब काम करता है, मैंने कहा कि खुदा मुकम्मल काम करता है। खुदा ने कभी किसी को आधी शिफा नहीं दी है, खुदा ने कभी किसी को आधा चंगा नहीं किया है, आधा पाक खुदा ने कभी किसी को नहीं किया है। खुदा ने जिसको पाक किया मुकम्मल किया है, खुदा ने जिसको माफ किया मुकम्मल माफ किया है, खुदा ने जिसको जिंदा किया है मुकम्मल जिंदा किया है। हालेलुया। आधा लाजर आधा जिंदा हुआ या पूरा जिंदा हुआ? पूरा जिंदा हुआ, क्योंकि खुदा कभी अधूरा काम नहीं करता। इसलिए गवाही भी अधूरी नहीं होनी चाहिए, फिर गवाही भी मुकम्मल होनी चाहिए। अभी कल परसों इकबाल साहब जो GDC में है वो अपनी गवाही दे रहे थे और उनकी गवाही सुन के मैं सोच रहा था कि वाह क्या कमाल की गवाही है। दरअसल गवाही ही ये थी, वो कहते हैं कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई थी, लेकिन जब खुदा ने काम किया है तो मुझे पहले से भी ज्यादा नजर आने लग गया है। ये है हकीकी गवाही जो एक मसीह की जिंदगी में एक मसीह हमारा खुदा प्यार करता है। ये है हकीकी गवाही। हालेलुया। बात करने का मकसद ये नहीं है कि खुदा हमारी लंबी दुआओं को नहीं सुनता। हाँ, खुदा सुनता है, बेशक सुनता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारी छोटी दुआओं को भी सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। आइए हम बंद करेंगे।